اگلی دوپہر کھانا کھاتے ہوئے نور الہدیٰ بابا جان سے کہنے لگے، میں سوچ رہا تھا آج شام کو منیر ماموں کی طرف چلا جاؤں۔ خیریت؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ لیگل معاملات پر مشوروں کی ضرورت آن پڑی ہے، پھر کمپنی کے رجسٹریشن کے پیپرز بھی بنوانے ہیں۔ منیر ماموں وکیل ہیں، سوچا ان سے ہی بات کر لوں، ان سے زیادہ قابل اعتماد اور کون ہو سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا جان نے کہا۔ نور الہدیٰ مزید بولے، آج کل ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ آفس تو نہیں جا رہے ہوں گے، گھر پر ہی بات ہو سکے گی۔ اور ارے ملیحہ، تم بھی ساتھ چلو نا، ویسے بولے جسے بولتے ہوئے اچانک یاد آیا ہو۔ ملیحہ نوالہ چبانا بھول کر انہیں دیکھنے لگی، جو خود بھی نوالہ منہ میں رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے انداز میں بول رہے تھے۔ بلکہ ایک کام کرو، ساتھ میں بیگ بھی تیار کر لو، شادی میں 2-4 دن ہی رہ گئے ہیں، سب رشتے دار بھی آ چکے ہوں گے، تم کچھ دن کے لیے رہ آؤ۔ ملیحہ کے حلق میں نوالہ اٹک گیا۔ اس نے فوراً پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر نور الہدیٰ انجان پنے اپنے ہی کہے جا رہے تھے، آج میں تمہیں چھوڑ آؤں گا اور ولیمے کے اگلے دن میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ملیحہ نے اب بابا جان کی طرف دیکھا، جو ساری بات چیت سے لاتعلق نظر آ رہے تھے۔ نور الہدیٰ کھانا کھا چکے تھے، ہاتھ صاف کر کے اٹھتے ہوئے پھر بولے، شام کو 5 بجے تک بالکل تیار رہنا۔ یہ تو وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ یاد دہانی اسے نہیں، بابا جان کو کروائی جا رہی تھی، مگر بابا جان نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو وہ اطمینان سے ٹیبل سے اٹھ گئے۔ اب ملیحہ کے لیے بھی کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی بابا جان کھانا ختم کر کے اٹھے، وہ نور الہدیٰ کے کمرے کی طرف بھاگے۔ نور الہدیٰ لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ملیحہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں آئی اور لائٹس آن کر کے ان کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ اٹھ کے بیٹھے ہوئے بولے، کیا بات ہے؟ ابھی آپ نیچے کیا کہہ رہے تھے؟ گو کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے، پھر معصوم بن کر بولے، شام 5 بجے تک تیار رہنا۔ انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے، مگر بابا جان نے منع کیا تھا۔ کب؟ وہ اب بھی بن رہے تھے، وہ تو کچھ بولے ہی نہیں، خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ اوفو، میں ابھی کی بات نہیں کر رہی، کل بابا جان نے ماموں کو منع کیا تھا، رات کو بتایا تو تھا۔ اسے الجھا دیکھ کر وہ سنجیدگی سے ہو گئی، کل منع کیا تھا، آج تو نہیں، تم بس جانے کی تیاری کرو۔ مگر بابا جان کو کتنا برا لگے گا، ان کے منع کرنے کے بعد آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ برا کیوں لگے گا بھائی؟ وہ حیرت سے بولے، کل جب ماموں تمہیں لینے آئے تو کیا گھر پر تھا؟ تو میں گھر پر تھا؟ نہیں۔ کیا بابا جان کو پتہ ہے کہ تم نے مجھے ان کے آنے کے بارے میں بتایا تھا؟ نہیں۔ تو پھر انہیں برا کیوں لگے گا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ میں نے تو یوں ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہی تھی، انہیں اگر منع کرنا ہوتا تو منع کر دیتے، سمپل۔ تو آپ نے دھاندلی کی ہے۔ ان کی چالاکی سمجھ کر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولے، مجھے نہیں پتا تھا کہ لندن والے اتنے بے ایمان ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی تو دیکھو نا کہ لندن والے بے ایمانی بھی کس قدر ایمانداری سے کرتے ہیں۔ وہ ڈھٹائی سے بول کر ہنسے، کیا خاک ایمانداری، شرم تو نہیں آئی جھوٹ بولتے ہوئے، سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی ملامت کا نور الہدیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوا، بولے، ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، مگر تم یہاں سے جاؤ، مجھے سونا ہے، رات بھی تم نے میری نیند برباد کی تھی۔ اسے جانے کا کہہ کر وہ آرام سے لیٹ گئی، مگر ملیحہ ہلی بھی نہیں۔ اسے اب ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی تھی، مگر ہادی بھائی، اگر میں چلی گئی تو گھر کا خیال کون رکھے گا، آپ دونوں کیسے رہیں گے؟ نور الہدیٰ نے سر پہ سے چادر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر کوہنی کے بال اٹھتے ہوئے کہا، گھر کا خیال رکھنے کے لیے ملازم ہے، اور میں بابا جان بچی نہیں ہے جو تمہارے بغیر نہ رہ سکے، لیکن کھانا پکانے کے لیے بھی تو کوئی گھر ہونا چاہیے۔ بابا جان کو نمک مرچ اپنی پسند کی ہی کھانی ہوتی ہے، اور آپ بھی رات کو دیر سے گھر آتے ہیں۔ تمہارے اسسٹنٹ بہادر ہیں نا، بھلا وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ملیحہ تپ کر بولی، وہ کسی مرض کی دوا نہیں ہے، بلکہ خود لا علاج مرض ہے۔ تینوں ٹائم مجھے اس کے سامنے کھانا رکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ اب بہادر صاحب کھانا کھا لیجیے ورنہ فوت ہو جائیں گے۔ اس نے اس طرح سے کہا کہ نور الہدیٰ ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے بولے، گل بانو بھی تو ہے، وہ سب سنبھال لے گی، اور پھر 1 ہفتے کی تو بات ہے۔ پھر ایک دم رعب سے بولے، اب اٹھو یہاں سے، نکل چلو۔
उन्होंने हाथ पकड़ उसे बेड से उठा दिया, मगर वो घूमकर वापस बैठते कहने लगे, हादी भाई ऐसा करते हैं, आज जाने की बजाय 2 दिन बाद मेहंदी के दिन रहने चली जाऊंगी, फिर वलीमे में तो आप आएंगे ही, तो आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। उसे अब तक जोर तोड़ में उलझे देखकर वो गहरा सांस भरते उठ बैठे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और बाबा जान तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे? आखिर एक एक ना एक दिन तुम तो शादी करके भी तो चली ही जाओगी। एक पल वो उनकी बातों पर शर्माई, फिर ढीठ बनकर बोली, मेरी शादी होगी तो आप कौन सा करवाड़े बैठे रहेंगे? देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। बहुत बोलने लगी हो, मगर मजीद में तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, मुझे सोना है। लेकिन हादी भाई, वो फिर से कुछ कहने लगी तो नूर हुदा चादर फेंककर बिस्तर से उठे और उसे बाजू से पकड़कर भाई की तरफ ले जाते बोले, तुम्हारे जितने भी लेकिन वैगन है, अगर मगर है, मैं जितने भी लेकिन विकिन है अगर मगर है, इनका जवाब मैं शाम को दूंगा। और अगर तुमने 5 बजे से पहले मेरे कमरे में कदम भी रखा तो तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा, कभी चाहकर भी वापस ना आ सकोगी। उसे कमरे से बाहर छोड़कर वो वापस अंदर मुड़े तो मलिहा भी हादी भाई बात सुनिए कहते उनके पीछे, मगर दरवाजा ठार करते उसके मुंह पर बंद किया। मलिहा ने मुंह कपन बनाकर मारने के लिए उठाया, मगर खुद ही हाथ गिराकर मुंह बनाती। मुंह बनाते कमरे में आ 10 गई। सवा 10। कमरे में आकर उसने अपना बैग तैयार किया, फिर शाम के लिए सवा कपड़े 10। निकल कर प्रेस किए। ठीक 5 बजे वो तैयार होकर नूरहुदा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उनकी आवाज़ पर दरवाज़ा खुलकर अंदर आ गई। नूरहुदा ने ब्लैक ड्रेस, पैंट पर ब्लैक ही शर्ट पहने, गले में एक गले में एक मेहरून और दूसरी मैरून और दूसरी ब्राउन डॉट्स। डॉट्स वाली टाई लटका के ड्रेसिंग के सामने खड़े थे। उसे देखकर बोले, मलिहा ज़रा बताना तो, दोनों में कौन सी टाई ज़्यादा सूट करेगी? बैग वहीं साइड पर में रखते हुए उनकी तरफ देखकर बोले, आप हर बात में मेरी राय लेना ज़रूरी क्यों समझते हैं? उन्होंने 2 बजे जवाब दिया। और तुम हर बात में बहस करना क्यों ज़रूरी समझती हो? उसने सिर झटका, फिर 2 कदम आगे आकर उनकी एक निगाह के सीने पर डाली और जाकर अलमारी में कुछ ढूंढने के बाद उनकी तरफ आ गई। फिर उनके गले से दोनों टाइयाँ निकालकर हाथ में पकड़ी, ऐश ग्रे कलर की टाई उनके गले में बांधने लगी। गैर इरादी तौर पर ही नूरहुदा की निगाह इस पर टिक गई थी। वो इस वक्त सफ़ेद रंग की शलवार कमीज पहने, सफ़ेद ही दुपट्टा कंधों पर फैलाए खड़ी थी। कानों में सफ़ेद मोतियों के आविज़े थे। आवेजी थे। आंखों में काजल की सी पतली लकीर और होंठों पर नेचुरल नेचुरल। नेचुरल शेड की लिपस्टिक लगाकर बाल कमर पर खुले छोड़ रखे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि मृदा उसे देखते देखते एक पल सबको फरामोश करके बैठते, जैसे अभी नहीं कुछ होश नहीं रहा था। टाई के नाट लगाकर सही करते हुए मलिहा उनकी तरफ देखकर यूं ही मुस्कुराई तो नूरहुदा फौरन संभले और मुड़कर आईने में टाई ठीक करने लगे, मगर आईने में भी उनकी निगाह मलिहा के अक्स पर थी। तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो। उनकी आवाज़ पर मलिहा हैरत से मुड़कर बोली, क्यों? इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए। हादी भाई, वो ऐसी बोली जैसे कह रहा हो क्या बेकार की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, उसे रुकने का कहकर नूरहुदा ने दराज से कैमरा निकालकर आंखों पर लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं? नूरहुदा ने कैमरा नीचे करते हुए कहा, तस्वीर खींच रहा हूँ, मगर मुफ्त में नहीं खींचूंगा, बदले में एक मुस्कुराहट मिलनी चाहिए। और मलिहा फौरन ही मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट को हमेशा के लिए कैद कर लिया। फिर बाबा जान के कमरे की तरफ आ गए। वो दरवाजे की तरफ ही मुतवज्जो थे। नूरहुदा से 1 कदम पीछे अंदर आती मलिहा ने उन्हें दरवाजे की तरफ देखा। पाया तो यूं घबराकर नूरहुदा का हाथ थाम लिया। नूरहुदा ने उसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और हल्के झटके से अपने करीब कर लिया, इतना कि उसका शाना नूरहुदा के बाजू को छूने लगा था। ये सारी कार्रवाई बड़े ही गैर महसूस अंदाज में हुई थी, फिर भी बाबा जान की निगाहों से छुप न सकी। बेटी और भतीजे की इस एहतियात को देखकर उन्होंने अनोखा ख्याल अचानक ही उनके जहन में आया था। नूरहुदा मलिहा को साथ लिए उनसे 2 कदम के फासले पर रुककर बोले, हम दोनों बस जा रहे थे, आपको अल्लाह हाफिज़ कहने आए थे। वो भी तक उसी ख्याल के ज़ेर असर थे, ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए। नूरहुदा उनकी मुस्कुराहट का मतलब तो न समझे, पर उसे एक गनीमत ख्याल करते हुए बोले, अल्लाह हाफिज़ कहकर पलट गए। मलिहा ने भी झट से अल्लाह हाफिज़ बाबा जान कहा और उनके साथ बोली, उनके साथ। हाँ।
नूरुल हुदा को ध्यान भी नहीं रहा था कि कमरे से निकलते वक़्त भी मलिहा का हाथ उनके हाथ में था और पापा जान ने वहां थामे हुए उन हाथों को देखते हुए अपने ख्याल को फैसले में बदल दिया था। कार गेट पर रोककर नूरुल हुदा ने मलिहा से कहा, जाओ। तो उसने कहा, आप अंदर नहीं आएंगे? इस वक्त मुझे कहीं और जाना है, अंदर जाऊंगा तो देर हो जाएगी। उन्होंने मजबूरी बताकर मलिहा उन नज़रों से हादी को देखते हुए गेट की तरफ जा पड़े। 3 मंजिला उस बड़े से मकान में मलिहा के दोनों मामू के खानदान थे। बड़े इफ्तिखार हसन की 3 बेटियां थीं, अज़मी, साइमा और समीरा। बड़ी दोनों शादीशुदा थीं। समीरा मलिहा की हम उम्र थी और उसका नंबर था। छोटे छोटे मामू मामू ने मुनीर हुसैन के सबसे बड़े बेटे आफाक थे, जिनकी समीरा के साथ शादी होनी थी। उनसे छोटी गौहर शादीशुदा थी। फिर समर था, जो मलिहा और समीरा का हम उम्र था, और उससे छोटी अरम थी, जिसने इरम जिसने डोरबेल की आवाज़ पर गेट खोला। फिर मलिहा को देखकर हाय मलिहा आपी, आप कहकर उससे पलट गई और फिर फौरन ही अलग होकर अंदर सबको बताने भाग गई। मलिहा ने गेट बंद किया और बैग उठाकर बड़ा सा लॉन पार करके दिलान तक पहुंची तो सब घरवाले उसके इस्तकबाल को आ पहुंचे थे। सबसे पहले उसकी नज़र खाला पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम खाला, वो सलाम करते उनके गले लग गई। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। साथ लपाटते हुए लिपटाए। वो मलिहा को दुआएं देती बोली, तुम करो। आज सुबह ही पहुंची हूँ, सोच रही थी कि जुनेद जाग जाए तो उससे कहूंगी मुझे मलिहा से मिलाना है। देखो जरा कैसी कबूलियत की घड़ी थी। आमना, क्या बच्ची को दरवाजे पर रोक कर खड़ी हो, अंदर तो ले आओ। ये बड़ी मुमानी थी। मलिहा ने भी सलाम किया। बेटी अंदर आ जाओ। तो सलाम का जवाब देकर उसे आहिस्ता साथ लेकर अंदर बड़े से हॉल में ले आए, जो सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो सोफे पर बैठ चुकी तो मुमानी को ख्याल आहिस्ता आया, आहिस्ता। मलिहा क्या अकेली आई हो? नहीं मुमानी जान, हादी भाई छोड़ कर गए थे। नूरुल हुदा, उन्होंने तस्दीक चाहिए। जी। तो दरवाजे से क्यों जाने दिया? रोक लेती, इन्हें किसी जरूरी काम से जाना था, कह रहे थे फिर आएंगे। नूरुल हुदा भी जवान हो गया होगा, आखिरी बार मैंने कब देखा था? 17-18 साल का था। आमना खिलाने हुई तबसरा किया। छोटी मुमानी बोली, ऐसा वैसा आपा, निगाह नहीं ठहरती। फरियाल होती, आज तो बेटे का सदमा निकालती, आखिर पालने वाले तो वही थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे, इसमें कभी अपने पराये का फर्क नहीं किया। तभी तो नूरुल हुदा ने इस घर से रिश्ते जोड़ रखे हैं। लंदन से आते ही दूसरे दिन मामू को सलाम करने घर आया था। फिर मलिया से बोली, भाई साहब कैसे हैं? ठीक है। आफाक भाई नजर नहीं आ रहे, अपने किसी दोस्त की तलाश में निकले हैं। और समीरा, उसने मजीद पूछा। अपने कमरे में है, जब से मायू बिठाया है सारा वक्त सोती रहती है, कहती है फैरिग बैठे और क्या करूं। मैं इसे देखती हूँ। दरवाजे के साथ मौजूद सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर समीरा के कमरे में आ गई। सुना था शादी करीब हो तो रातों की नींद उड़ जाती है, पर यहाँ तो दिन में भी ख्वाब खरगोश के मजे लिए जा रहे हैं। उसने कहते हुए जरा सा चादर को खींचा, जिससे बिना वापस तान लिया गया था। गोबर की बच्ची, तुम्हें कहा ना मैंने, उठूंगी जो बकवास करनी है कर लो। अभी शादी हुई भी नहीं है और आवाज किधर मोतल है कि मेरी आवाज भी पहचानी नहीं जा रही। शादी के बाद तो शक्ल भी नहीं पहचानोगी। चादर तले थनकने के आसार नमूदार हुए। फिर एक आंख निकाल कर बाहर झांका और मलिहा पर नजर पड़ते ही, ये तुम हो? कि चादर फेंकी वो दीवाना वार मलिहा से लपट गई। समीरा बस करो, पसलियां तोड़ोगी। मलिहा ने मुश्किल से खुद से अलग किया। वो रक्त हो गई, पर उसे जोर से हाथ मारकर बोली, बदतमीज, जब अब्बू को चाहो तुम्हें लेने गए तब आए क्यों नहीं आए? अब आ गए हो ना? वो मतानत से बोली। अभी नहीं आती तुम्हें जान से मार देती। इतनी में एक बच्चा भाग भाग के आया, बोला, खाला मम्मा कह रही है आकर चाय पी लें, और बोलकर वापस भाग गया। चलो, मलिहा ने उसके साथ उठाया। सिर्फ तुम्हें बुलाया है, मेरे तो बाहर निकलने पर पाबंदी है कि खुदा ना खास्ता फाक साहिब की नज़र पड़ गई तो उनको शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। वैसे सकता इंसाफी है, इन्हें मैं कमरे में बंद कर देना चाहिए। अगर हम भी साहिब ईमान हैं। इसके जले कुटे 10 पर हंसते हुए मलिहा ने कहा, तुम्हारे ईमान का भी ख्याल है, इसलिए तो कमरे में बिठाया, तो क्या फ़ायदा? मैं खिड़की में से इन्हें जाते देख लेती हूँ। क्या? मलिहा आगे फाड़ कर उसे देखा तो वो टाई से हंसने लगी। बहुत बेशर्म हो। फिर उठते हुए बोली, अभी खाकर तुम्हें देखती हूँ। चाय के दौरान ही मगरिब का वक्त हो गया। बाकी सभी लोग नमाज पढ़ ही रहे थे कि वो नमाज पढ़कर दलान में बच्चे की तरफ खड़ा बैठी। दोनों पाँव सैंडल से आज़ाद करके ऊपर उठाए वो फुर्सत से बैठ गई। आसमान का रंग गहरा होने लगा था। दूर कहीं कुछ परिंदे अपने आशियानों तक पहुंचने की कोशिश में उड़े जा रहे थे। वो फारिग बैठी इन परिंदों को देखती रही। फिर यूं ही भटकती उसकी नजर तख्त पर कुछ हाथ के फासले पर रखे दुपट्टे
पर पड़ी, जिस पर कुछ देर पहले साहिबा लैस टांग रही थी। करने को और तो कुछ नहीं था, लैस दुपट्टा उठाया और टांगने लगी। गेट का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया। मलिहा ने ध्यान नहीं दिया। इतनी सी देर में ही समझ गई कि यहाँ आमदोरफ्त भी शादी के हंगामों का एक हिस्सा है। अंदर आने वाला शाम के धुंधले में दालान की रोशनी के तख्त पर बैठी सुई धागे में उलझी लड़की को देखकर पहले तो आगे बढ़ने लगा, फिर कुछ शख्सा हुआ तो उस चेहरे की तरफ देखा। आप? हैरत भरी आवाज पर मलिहा समझी तो नहीं मुखातिब वो थी। फिर भी सर उठाकर देखा तो चॉकलेट कलर की शलवार कमीज में मलबूस मजेदान को देखकर हैरत कुछ इस तरह गालिब भाई के एहसास भी नहीं हुआ, और सुई दुपट्टे में गुजरने के बजाय सीधी बाएं हाथ के अंगूठे में घुसा दी। मरिया के अंगूठे में उठती टीसों की तरफ ध्यान भी नहीं गया। मजदान उसके अंगूठे से खून के कतरे खूब बचे देखकर सर झुक कर इसके पास चला गया। ये आपने क्या किया? उसे मलामत करके उसके सामने हंगाज में घुटना घुटना से मुंह पर टिकाता टिकाता हुआ बैठा और उसके हाथ थामने को हाथ बढ़ाया तो मलिहा ने करंट खाकर अपना हाथ पीछे कर लिया। मजदान ने सर उठाकर उसकी देखा, फिर जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे तो ले सकती है। मरिया ने कुछ हिचकिचाहट के बाद रुमाल लिया। रुमाल से खून साफ करते हुए उसने मजदान को कहते सुना, आपने लाइब्रेरी आना क्यों छोड़ दिया है? मरिया ने चौंक कर उसे देखा। आपको कैसे पता? वो भी कुछ बोले बगैर मुस्कुराया तो मरिया ने आंखें फैलाकर उसे देखा। तो आप रोज वहां जाते हैं? मेरा मतलब है 2 महीने से आप कैसे? वो बेराब्ता अंदाज में बोली थी। वाजिदान की मुस्कुराहट कुछ और भी कह रही थी। मुझे तो यकीन नहीं है, मगर यही सच है। मैं तेरे वास्ते उम्र गुजार सकता हूँ। यही नहीं कि मैं तुझे जीतने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते खुद को भी हार सकता हूँ। मलिहा दम्बक खुद सी बैठी थी और वाजिदान भी जैसे इन पलों के शहर से निकलना नहीं चाहता था। वाजिदान, एक पुकार एक इस एक पुकार ने तिलिस्म तोड़ दिया। वो दोनों एकदम से होश में आ गए। वाजिदान ने गर्दन घुमाकर आवाज किसी ने देखा। गेट से अंदर आता फाक उसे देखा था। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे शहर में तलाश कर रहा था। मलिहा ने फाक को देखा और फिर वाजिदान को। सर शामिल शख्स मलिहा के सामने घुटनों के बल न्याजमंदी से बैठा था। न्यू सिचुएशन किसी हद तक काबिल तराश तो थी। इसके ख्याल से वो शर्मिंदा भी थी, मगर वाजिदान के चेहरे पर उसे किसी किस्म की घबराहट के आसार नजर नहीं आए थे। वो इत्मीनान से उठकर आफाक से गले मिला जो शिकवा कर रहा था। कहाँ होते हो यार? नजर ही नहीं आते। बाबा भी तुम्हारी गुमशुदगी से काफी नाराज हैं। सुबह तो उन्होंने बाकायदा हुक्म ही दे डाला कि तुम्हें कहीं से बरामद करूं। कोई खास वजह? किसी केस के सिलसिले में तुमसे मशवरा करना चाहते हैं। वाजिदान चल पड़ा। एडवोकेट को मुनीर हसन को मशवरे की जरूरत है। वो भी मेरे मशवरे की? कुछ ऐसा कि जिसे मैं मान भी लूं? सीरियसली यार, पापा तो बहुत मानते हैं, और जब मैंने इनके लीगल फॉर्म ज्वाइन करने की बजाय लीगल एडवाइजर की जॉब की है, तेरे नाम से मुझे ताने की सुनने पड़ते हैं। चल अंदर आ। चल अंदर तो आ। अफाक उसे साथ ले अंदर चला गया। मलिका जहाँ थी वहीं बैठी रह गई। अफाक ने उसे मुकम्मल तौर पर अंदाज कर दिया था, हालांकि सामने ही बैठी थी और ये मुमकिन नहीं था कि आफाक ने उसे ना देखा हो। मगर जिस तरह उसने मलिहा की अनदेखी की थी, मलिहा को बहुत अजीब लगा था। मलिहा, यहाँ क्यों बैठी हो? वहाँ सब हॉल में सब ढोलक का प्रोग्राम बनाए तुम्हारे इंतजार में है। उठो, शाबाश। साइम आकर उसके बराबर बैठते बैठे हुए बहुत प्यार से बोली, फिर उसका हाथ थाम कर अपने साथ उठाते हुए अंदर ले आई। हाल की एक जानी बेची कलीन पर मलिहा के तमाम बदन अपनी ढोलक लिए बैठी थी। साथ समीरा को भी बिठा रखा था, जो हाथ भर के लंबे घूंघट में थी, और पास ही सोफे पर वाजिदान बड़ा जमात था, जो आफाक के साथ बातें करते हुए अपने बाजू से लगी बैठी उनकी छोटी सी पोनी को बार बार खींच रहा था वो, और बार बार झिंझला जाती। मलिया एक अचटती सी निगाह उस तरफ डालकर अपनी कजन में आ बैठी। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वाजिदान से दूर जाना चाहती थी और अब फिर मेरे सामने आके मैंने खुद को इस तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ने से रोक लिया था, फिर आप क्यों उसे दोबारा मेरे रास्ते पर ले आए हैं? यूँ लगता है मैं दायरे में कैद हो गई हूँ। जिस भी रास्ते पर कदम बढ़ाऊंगी उसके आखिरी सिरे पे वाजिदान को ही खड़ा पाऊंगी। इन सतरों को रकम करके उसने डायरी बंद करके एहतियात से बैग में वापस रखी और लाइट ऑफ करके डबल बेड पर जाकर लेट गई, जिसके एक सिरे पर समीरा बेखबर सो रही थी। मुनीर ने दोबारा वाजिदान को भी तरफ मतवजा नहीं पाया, हालांकि वो उसके आसपास ही था। इन 3 दिनों में मलिया को इन तीन चल उसके चल चुका था। वो इस वजह से एक जो से से सब से बड़े
कंसर्ट करके सब स्टेज के नीचे उठ जाते वली स्टेज के नीचे कुर्सी पर बैठी पिंक पिंक कलर के किसी शॉल में को कोकोरिना कोकोरिना का स्टेज उतरी और सब ताली बजाने ये सब हंस लगे। वाजदान की बारी सबने सबके पैर में वाजदान का नाम पुकारना शुरू किया। वाजदान अपनी जगह से आकर आलती पालती इरशाद से जब शोर थमा तो वाजदान ने सारी आवाज हम चुके बस्ती हम चुके बस्ती खास की साजो यार तब तारा हो जब जीवन रात तो वाजदान क्या जिसे किसी से मिलते था उसके चेहरे की वजूहात भरे मुश्किल दिल की आंख से देखा और पहले उसने जान आंख से देखा वाजदान की आवाज को गहराई से सुना फिर महसूस और किसी आते उससे एक आवाज की सवाल से सुना जब सावन दिन छाता जब चंद आता हो जब सूरज थोड़ा आता हो ये शाम बस्ती पार उस जुम्मे की आवाज कश उसके वजूद दूर दूर तक फैल आकर दूसरे ही संजीव हाँ दिल फटा का हम कब तक रेत के धोखे तुम कब तक दूर चढ़ कब तीर से दिल को सेरी पार कब तुम और मुझसे देख क्या झगड़ा सूद खसार पार जा सब सुनार पाले जाए जब सब दुनिया ले जाए तुम मुझे बहते एक तुम सब बता दे से बस एक जान की आंखों में उसकी जान से मिटा समझ क्या अंधेरी जान उसके चेहरे क्या झगड़ा सूद खसार पार जाए उसे तुम से जान हम मजेंडा और ब्लू कंट्रास्ट शरारत वो अपनी कजन्स के साथ दुल्हन से वाक्य पहले ठाक उसका डर के सीधी होकर स्टेज से उतर के आवाज इफ्तिखार हसन मलिका भी फौरन बोली जी जान बेटा तो करो भाई साहब वक़्फ़ के बाद बोली मामू जान आप तो जानते हैं ना बाबा जान को वो कभी भी पुरहजम जगहों पर जाने के लिए तैयार नहीं होते वो जानते थे इसलिए फिर इसरार नहीं किया और नूरुल हुदा का पूछने लगे नूरुल हुदा तो आएगा ना जी मामू जान सुबह मेरी हादी भाई से बात हुई थी वो कह रहे थे कि वो आएंगे थोड़ी देर में आते ही होंगे वो सर हिलाकर किसी और की तरफ मतवज्जा हो गए तो मलिहा भी अपना शरारा संभाल कर स्टेज से उतरती वाजदान के बराबर से अनजान बनकर गुजर गई मलिहा जब इफ्तिखार हसन ने मलिहा का नाम पुकारा तो वो मलिहा से 2 कदम ही पीछे था और अपने आप ही उसके एहसासात को एक नाम मिल गया था उसने नाम को जेर लब दोहराया यूं कि होठ तो हिले मगर आवाज़ नहीं उभरी मलिहा ने कोई आवाज़ तो नहीं सुनी पर उसे एहसास हुआ उसका नाम ले रहा है वो फिर साख्ता पलट कर बोली जी मगर वाजदान को देखकर सिपटा गई उसके सवालिया अंदाज पर वाजदान बोला सब कुछ तो कह चुका हूँ अब और क्या कहूँ वो गिड़गिड़ा कर फौरन ही पलट गई मगर जाने क्या हुआ कुछ कदम चलकर वो अचानक फिर पलटी और फोन कलर के डिनर सूट
میں واجدان کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے الجھ گئی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ واجدان کو دیکھ کر ملیحہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی، وہ ٹھٹک گئی۔ آگاہی کا پل اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے واجدان مصطفیٰ کو دیکھا۔ واجدان نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ ملیحہ اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر احساسات پر غور کرتے ہوئے الجھے انداز میں سر جھکا لیا تو سلکی بال کندھے سے پھسلتے ہوئے ایک رخ کو ڈھک گئے تھے۔ ایک ہاتھ سے بال ہٹاتے اس نے پھر واجدان کو دیکھا جو بہت دلچسپی سے اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا، اور پہلی بار واجدان نے اسے خود سے شرماتے دیکھا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے رخ بدل کر وہ ہونٹوں میں مسکرائی، پھر فوراً ہی پلٹ کر بھاگتے ہوئے ہال کی ایک جانب بنے ڈریسنگ روم میں جا چکی۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اسے حفظ کر لیا تھا۔ بھلا اسے اس حادثے کی خبر کیسے نہ ہوتی؟ واجدان نے کھل کر مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس رب کا شکر کرنے لگا جس نے آج اس کو معتبر کیا۔